BBC اردو کے پروگرام سیربین میں خوش آمدید. ہمارے لندن اسٹوڈیو سے میں ہوں عالیہ نازکی. پاکستان میں ایک غیر سرکاری ادارے کے مطابق گزشتہ 10 برس میں منشیات کا استعمال اسلت کے عادی افراد میں معذوری کی سب سے بڑی وجہ بنا ہے. منشیات پر قابو پانے میں مشکل کیا ہے؟ اور کنوکشن اور سخت پنشمنٹ کے نہ ہونے کی وجہ سے اس کے اوپر روک تھام جو ہے بہت زیادہ مشکل ہے. انڈیا کی جنوبی ریاست کیرلا میں نیپا وائرس سے 10 افراد کی موت کے بعد متاثرہ علاقے میں خوف کا ماحول. اور ٹیکسس حملے میں ہلاک ہونے والی 17 سالہ پاکستانی طالبہ زبیکہ شیخ کی کزن اپنی کس کوشش کو ان کے نام کرنا چاہتی ہیں؟ پاکستان میں ایک غیر سرکاری ادارے انسٹیٹیوٹ آف ہیلتھ میٹرکس اینڈ ایویلویشن کی ایک حالیہ رپورٹ کے مطابق پاکستان میں گزشتہ 10 برسوں میں منشیات کے استعمال سے منشیات کے عادی افراد میں معذوریوں اور بیماریوں کی شرح میں 98% اضافہ ہوا ہے. ملک کے سب سے بڑے شہر کراچی میں ان دنوں منشیات کی ایک نئی قسم مقبول ہے جس کا شکار زیادہ تر تعلیم یافتہ نوجوان بن رہے ہیں. اس کے اثرات صحت اور سماجی طور پر کس طرح مرتب ہو رہے ہیں؟ دیکھیے کراچی سے ریاض سہیل کی رپورٹ. کراچی کے کئی علاقوں میں یہ مناظر دیکھنے کو ملتے ہیں. انہیں نہ تو پولیس ہاتھ لگاتی ہے اور نہ ہی لوگ روکتے ہیں. اس وجہ سے یہ بغیر روک ٹوک منشیات استعمال کرتے ہیں. لیکن منشیات کی بحالی سینٹر میں ان دنوں ایک نئے نشے کے عادی نوجوانوں کو لایا جا رہا ہے جسے کرسٹل میتھ کہا جاتا ہے. اس کا شکار زیادہ تر نجی تعلیمی اداروں اور امیر گھرانوں کے نوجوان بنتے ہیں. بحالی سینٹر میں زیر علاج یہ نوجوان بھی ہم جماعت کے ذریعے کرسٹل کا عادی بن گیا. تو جیسی وہ چیز میں نے استعمال کی تو مجھے یعنی کہ کافی مینٹلی طور پر یعنی کہ میں نے بہتر محسوس کیا اور کافی یعنی کہ مینٹلی طور پر اور جسمانی طور پر ریلیکس میں نے محسوس کیا. آہستہ آہستہ پھر وہ میں یوز کرتا گیا. پھر آگے چل کے مجھے یہ پتہ چلا کہ یہ تو کرسٹل ہے. تو اس کا یعنی کہ میں ایک یوزر بن گیا ہوں اور جب تک وہ میں استعمال نہیں کرتا تھا تب تک مجھے یعنی کہ ذہنی سکون نہیں آتا تھا, جسمانی سکون بھی نہیں آتا تھا. ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ کرسٹل کے مسلسل استعمال سے خوشی اور مسرت کے جذبات پیدا ہوتے ہیں اور کسی توانائی کے مشروب کی طرح طاقت محسوس ہوتی ہے, لیکن یہ کیفیت تھوڑی دیر ہی برقرار رہتی ہے. اسٹریس سب سے اہم ہے. اسٹریس کے بعد پھر یہ ہوتا ہے کہ پرسنالٹی ڈس آرڈر بھی ہوتی ہے. کافی جو یوتھ ہیں اس میں پرسنالٹی ڈس آرڈر کی وجہ سے بھی یہ شروع کر دیتے ہیں. اگر 4 دوست اگر کوئی نشہ استعمال کر رہے ہیں, ایک نہیں کر رہا ہے تو ایک بھی ان کو دیکھ کے وہ شروع کر دیتا ہے. تو اس میں جو ڈائریکٹ جو برین کی ایکٹیویٹیز ہیں, برین کی جو پرفارمنس ہے وہ اس طرح سے ان کو کرتے ہیں کہ جو ریسیپٹرس ہیں ان کو یہ بالکل جو ہے وہ ڈی ایکٹیو کر دیتے ہیں. تو ریسیپٹرس جب ڈی ایکٹیو ہو جاتے ہیں تو ظاہر ہے پھر وہ اسی طریقے سے برین آپ کا آرڈر نہیں مانتا جیسے ایک نارمل انسان کا مانتا ہے. علاقے میں کہاں منشیات فروخت ہو رہی ہے, پولیس اور دیگر ادارے اس سے باخبر ہوتے تھے, لیکن کرسٹل کی فروخت روایتی انداز میں نہیں بلکہ سوشل میڈیا کے ذریعے کی جاتی ہے, جو پولیس کے لیے ایک چیلنج ہے. کہ واٹس ایپ, فیس بک اور اسی طرح کے اور سوشل میڈیا جو اپلیکیشنز ہیں ان کو جو ڈرگ سیلرز ہیں وہ یوز کر رہے ہیں. ہم نے دیکھیں 2-3 گروپ ایسے پکڑے جو کہ ڈفرینٹ جو ہماری ٹیکسی سروسز ہیں وہ یوز کر رہے ہیں. اس کے اندر لڑکیاں بھی شامل ہیں, اس کے اندر لڑکے بھی شامل ہیں, اور وہ گھر کے اندر جا کے ڈراپ کر کے آ رہے ہیں ڈرگس بچوں کے لیے. اب دیکھیں جو پوش ایریاز میں ڈفرینٹ قسم کی پارٹیز ہو رہی ہیں اس کے اندر بھی بچوں کو ڈرگ سیل کیے جاتے ہیں. وہ ایریاز ایسے ہیں کہ جو کوئی آئیڈینٹیفائڈ نہیں ہے. ایک پارٹی ایک دن ایک گھر میں ہو رہی ہے تو ہو سکتا ہے اگلے دن وہ کسی اور ایریے میں ہو رہی ہو. تو اس لیے جو سورس آف انفارمیشن ہے وہ پولیس کے پاس بڑی لمیٹڈ ہے. کراچی میں منشیات کے استعمال کی صورتحال کی سنگینی کے پیش نظر حکومت سندھ ایک پالیسی تشکیل دے رہی ہے جس کے تحت نوجوانوں کے جامعات میں داخلہ کے لیے خون کے نمونے حاصل کیے جائیں گے. ریاض سہیل, BBC نیوز, کراچی. اور اسی بارے میں آپ سے کچھ دیر پہلے میں نے بات کی پشاور میں منشیات کے عادی افراد کی بحالی کے لیے کام کرنے والی غیر سرکاری تنظیم دوست فاؤنڈیشن کی سربراہ ڈاکٹر پروین اعظم خان سے, اور ان سے پوچھا کہ ملک بھر میں منشیات کا مسئلہ بڑھتا جا رہا ہے, سرکاری سطح پر کوئی پالیسی بنائی گئی ہے اس سے نمٹنے کے لیے؟ اس وقت تک تو پاکستان میں کوئی خاص پالیسی بنائی نہیں گئی.
हमारे जो मुख्तलिफ NGOs हैं और UNODC कुछ बाहर के इदारे हैं, उन्होंने रोकथाम के लिए और इसके इलाज व बहाली के लिए कुछ न कुछ वो एफ़र्ट कर रहे हैं। इस वक्त जो है नए नए ड्रग जो हैं वो मार्केट में आ रहे हैं और उनको निपटने के लिए अभी हमारे पास कोई इस किस्म के ख़ास प्रोग्राम नहीं है। आपने नए ड्रग्स का जिक्र किया, जो नई किस्म की मनशियात जिनका इस्तेमाल हो रहा है, जिनमें क्रिस्टल मेथ भी शामिल है, इनको रोकने के लिए क्या कुछ किया जा सकता है? सबसे पहले तो ये है कि लोगों को आगाही देनी है कि कितने ख़तरनाक है और इनके क्या क्या असरात होते हैं, कितने इनके जहरीले असरात होते हैं। फिर यह है कि लॉज हमें बदलनी चाहिए, क्योंकि हमारे ज़्यादातर जो इसके मनशियात की जो लॉज हैं वो जो है उन मिकदार के ऊपर होता है, और ये एम्फेटामीन जो है ये बहुत थोड़े मिकदार में बहुत जहरीले होते हैं और बहुत असरअंदाज होते हैं। इसलिए इनके लिए हमें पूरी पॉलिसी जो है बदलनी चाहिए। पुलिस का ये कहना है कि क्रिस्टल मेथ का जहाँ तक ताल्लुक़ है, उसका जो इस्तेमाल है वो एक ख़ास तबके तक महदूद है। क्या वाकई ऐसा है? ज़्यादातर जो है इसको पार्टी ड्रग कहा जाता है और इसको रिक्रिएशनल ड्रग कहा जाता है, बल्कि इसको एक स्टेटस सिंबल भी समझी जाती है, क्योंकि ये महंगे हैं। एक गोली 2500 रुपये की एक गोली होती है, यानी एक दफ़ा आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसलिए इसको ज़रा थोड़ी सी स्टेटस सिंबल समझी जाती है। मगर हम जो स्ट्रीट के बच्चे हैं जो सड़कों पे फिरते हैं वो भी इसके ऊपर आदी हो गए और इसके इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि उनको मुफ्त दिया जाता है। जब वो बिल्कुल आदी हो जाते हैं तो फिर जो है उनसे जो है रकम ली जाती है उनके लिए। दूसरा ये है कि ये सिंथेटिकली बनते हैं तो इनकी कीमत जो है फिर कम हो जाती है। फिर इसके अंदर इतनी और मिक्सचर्स करते हैं ड्रग्स के जो इनके लिए और भी जहरीली बना लेते हैं। उस वजह से थोड़ी सी इनकी इनकम जो है, इनकी जो है अखराजात जो है वो कम हो जाते हैं निस्बतन। अच्छा, अगर इनकी ख़रीदो फ़रोख्त अब सोशल मीडिया पर होती है जैसा कि पुलिस का कहना है, तो फिर इस पर काबू कैसे पाया जाए? इसके ऊपर काबू पाना जो है तो बहुत मुश्किल है, जब तक हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ इसके मुतालिक अच्छी तरह समझ न जाए और इसके लिए अच्छे रोकथाम के तरीके जो हैं इख्तियार न किए जाए। दूसरा ये है कि लोगों को पनिशमेंट मिलनी चाहिए। बहुत से लोगों को केसेस में मुब्तला किया जाता है, उनको पकड़ा जाता है स्मगलिंग में और नारकोटिक्स पेडलिंग में, मगर वो केस जो हैं वो आखिर तक जो है उसमें जो है कन्विक्शन नहीं होती। तो उस फाउंडेशन की सरबराह डॉक्टर परवीन आज़म खान, जिनसे मैंने कुछ देर पहले बात की। आइए अब देखते हैं कि हमारे सोशल मीडिया सफ़ात पर क्या कहा जा रहा है। अली बख्श लहरी कहते हैं कि गुर्बत, बेरोज़गारी और घरेलू मसाइल की वजह से लोग मनशियात की जानिब रुख करते हैं। सहरा मरगड़े ने लिखा है कि इसको ख़त्म और रोकथाम न करना मनशियात के इस्तेमाल में इजाफे की वजह है, जो हुकूमत की ज़िम्मेदारी है। और मोहम्मद सूफियान का ख्याल है कि इसकी वजह अफ़गानिस्तान में अफवाज की नाक के नीचे होने वाले मनशियात के कारोबार हैं। और अब कुछ दीगर अहम खबरें। इंडिया की जनूबी रियासत केरला में नीपा वायरस की जद में आने से 10 लोगों की मौत हो गई है। हुकूमत का कहना है कि सूरत हाल काबू में है, लेकिन रियासत के मुतासरा इलाके कोझिकोड में खौफ का माहौल है, क्योंकि इस बीमारी की जद में आने वाले ज़्यादातर अफराद की मौत हो जाती है। दिल्ली से सुहेल हलीम की रिपोर्ट। ये एक महलिक बीमारी है जिसका फिलहाल कोई इलाज नहीं। इसकी जद में आने वाले मरीजों में से तकरीबन 70% की मौत हो जाती है। केरला की हुकूमत ने नीपा वायरस की वजह से 10 अमवात की तस्दीक कर दी है। इलाके में लोग खौफजदा हैं और बड़ी तादाद में अस्पतालों का रुख कर रहे हैं। मरने वालों में से 3 का ताल्लुक सिर्फ एक ही खानदान से था। अस्पताल में उनकी देखभाल करने वाली एक नर्स की भी मौत हो गई है। मरीजों को इंतहाई निगहदाश्त वाले यूनिटों में बाकी मरीजों से अलग रखा जा रहा है और सूरत हाल पर काबू पाने के लिए दिल्ली से माहिरीन की टीमें केरला पहुंच गई हैं। आलमी इदारा सेहत के मुताबिक ये मर्ज फ्रूट बैट्स या उन चमगादड़ों से फैलता है जो फल खाती हैं। ये जानवरों से इंसानों में और इंसानों से दूसरे इंसानों में भी फैलता है। इसके मरीजों में पहले फ्लू जैसे सिम्टम्स नजर आते हैं, जैसे बुखार, गले में खराश, जिस्म में दर्द और उल्टी वगैरह। इंडिया में ये बीमारी पहले भी 2 मरतबा फैल चुकी है
और उस वक्त मजमूई तौर पर 50 लोग हलाक हुए थे। सुहेल हलीम, BBC न्यूज़, दिल्ली। बरतानवी वज़ारत दाखिला के वज़ीर बराए सिक्योरिटी ने कहा है कि बरतानिया बहुत तेज़ी के साथ यूरोप में नशावर मवाद कोकेन के इस्तेमाल का सबसे बड़ा मरकज़ बनता जा रहा है। बेन वॉलिस का कहना था कि न सिर्फ मनशियात फरोश जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से कोकेन फ़रोख्त करने में कामयाब हो रहे हैं, बल्कि इस नशावर मवाद की वजह से मुल्क में पुरतशद्दुद जराइम में भी इजाफा हो रहा है। अमरीकी रियासत जॉर्जिया में डेमोक्रेटिक पार्टी की रुकन स्टेसी एब्रम्स गवर्नर के इंतखाबात के लिए पार्टी की उम्मीदवार बन गई हैं और उनके जीतने के इम्कानात बढ़ गए हैं। अगर हुक्मरान रिपब्लिकन पार्टी की अक्सरियत वाली रियासत जॉर्जिया में वो कामयाब होती हैं तो वो पहली सियाफाम खातून गवर्नर बन जाएंगी। ऑस्ट्रेलिया में कैथलिक फ़िरक़े के सीनियर रहनुमा ने बच्चों के साथ जिनसी ज़्यादती के एक मामले की पर्दापोशी का मुर्तकिब पाए जाने के बाद अपने ओहदे से इस्तीफ़ा देने का ऐलान किया है। एडिलेड के आर्च बिशप फिलिप विल्सन पर गुज़श्ता रोज़ एक पादरी के हाथों बच्चों से जिनसी ज़्यादती के मामले को छुपाने का इल्ज़ाम साबित हुआ था। BBC उर्दू के प्रोग्राम सरबीन में आगे चलकर देखिएगा, टेक्सास हमले में हलाक होने वाली 17 साला पाकिस्तानी तालिबा सबीका शेख की कज़न उनके लिए क्या करना चाहती हैं, और पैदाइश पर अपनी माँ से बिछड़ने वाले बेटे ने किस तरह 40 बरस बाद अपनी माँ और बहन भाइयों को ढूंढ निकाला। BBC उर्दू के प्रोग्राम सरबीन में एक बार फिर खुशामदीद। मैं हूँ आलिया नाज़की। अमरीकी रियासत टेक्सास में सांता फे हाई स्कूल में शूटिंग के नतीजे में हलाक होने वाली पाकिस्तानी एक्सचेंज स्टूडेंट सबीका शेख की मैयत आज पाकिस्तान वापस पहुँची। हमारी नामानिगार सहर बलोच तदफीन के मौके पर मौजूद थीं और उनके घर वालों से मिली। हम लोग इस वक्त मौजूद हैं अज़ीमपुरा कब्रिस्तान में, जहां पर आज सबीका शेख की तदफीन की गई है। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं सबीका शेख के वालिद अब्दुल अज़ीज़ शेख साहब। इनसे बात करते हैं आज के हवाले से। हालांकि हम समझते हैं कि आज बात करना काफ़ी मुश्किल है। जैसे अमेरिका में अब तक गन लॉज नहीं बनाए जा रहे हैं, हालांकि ये 22वीं शूटिंग है जो अब तक स्कूल में हो चुकी है। इस हवाले से सर आप कुछ कहना चाहेंगे? बिल्कुल, ये इससे पहले भी मैं कह चुका हूँ और आज भी मैं ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन से हम ये उम्मीद करते हैं कि सबीका की शहादत को बेस बनाते हुए गन्स लॉ के बारे में वो कानून बनाएंगे और उस पर इम्प्लीमेंट करेंगे ताकि इस तरह के वाक़यात ना हो। आखिर क्या फ्रस्ट्रेशन है कि एक साल के अंदर 5 महीने के अंदर ये 22वां वाक़या है। तो ऐसे वहाँ के जो नौजवान हैं, जो यंग जनरेशन है, उसके अंदर इतनी फ्रस्ट्रेशन क्यों पैदा हो रही है? इस कॉज को तलाश करना चाहिए, उसको ख़त्म करना चाहिए। गन के लॉज बनने चाहिए। मैं तो कहता हूँ कि सबीका की शहादत को ज़ाया नहीं करना चाहिए और कम से कम इस टॉपिक को डिस्कस करना चाहिए, इस पे कानून बनना चाहिए, उस पे अमल भी होना चाहिए। इस वक्त मैं मौजूद हूँ सबीका शेख के घर पे, जहाँ आज उनकी तदफीन का अमल हो चुका है और मैं इस वक्त उनकी कज़न के साथ मौजूद हूँ जो उनके साथ वाशिंगटन से वो पहले ह्यूस्टन गई हैं, ह्यूस्टन से उनकी बॉडी के साथ आज कराची आई हैं सुबह सवेरे, और शहीरा नाम है उनका और वो भी फुल ब्राइट की स्टूडेंट हैं। अच्छा, इस पूरे वाक़ये के बारे में आपके क्या तासुरात हैं जो कि वहाँ पर हुआ है? ज़ाहिर है आप ख़ुद भी स्टूडेंट हैं और वहाँ पर गन लॉज जो हैं वो काफ़ी इस वक्त जो है डिबेट का हिस्सा हैं। वहाँ पर बात की जा रही है, अब तक 22 स्कूलों में इस किस्म की शूटिंग्स हो चुकी हैं। तो आपको लगता है कि क्या गन लॉज में कोई तब्दीली लेकर आएंगे अमरीकी जो लेजिस्लेशन है? आई थिंक मैं चूँकि ख़ुद मेरी वापसी होगी वाशिंगटन DC में, बज़ाते ख़ुद मेरा जो अपना पॉलिटिकल एक्टिविज़म है मैंने डिसाइड किया है कि सबीका को मैं डेडिकेट करूँगी गन लॉज के ऊपर ही। वाशिंगटन इज़ अ वेरी फाइन प्लेस टू बी डूइंग दैट। दिस इज़ अ लॉट हैपनिंग अराउंड इट। बहुत कुछ हो रहा है। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो कि फ्लोरिडा के अंदर पार्कलैंड शूटिंग हुई थी उसके बाद से काफ़ी तेज़ी पकड़ी है इस पूरे एक्टिविज़म ने। तो मुझे लगता है अब जाके जो यूथ है दे टेकिंग अ चार्ज ऑन दिस, अब थोड़ी मुमकिनात मुझे लगती हैं और हम विल मेक श्योर कि सबीका का केस बिकम्स अ सिंबॉलिक केस ऑन दिस। आइए देखते हैं bbcurdu.com पर क़ारीन की दिलचस्पी किन खबरों में है। नईमुल हक़ का दानियाल अज़ीज़ को थप्पड़, क्या चीन वाकई अरुणाचल प्रदेश में पाँव जमा चुका है, और नवाज शरीफ का बयान कि बदअनवानी के मुक़दमात मुशर्रफ के ख़िलाफ़ गद्दारी के मुक़दमे की सज़ा हैं, काफ़ी मकबूल हैं। गोद लिए गए बच्चों के लिए अपने हकीकी वालिदैन की तलाश इंतहाई मुश्किल होती है, लेकिन द नेदरलैंड्स में मुकीम आंद्रे क्विक ने सब मुश्किलात के बावजूद 40 साल बाद अपने हकीकी घर वालों को ढूंढ निकाला। उन्हें सिर्फ इतना इल्म था कि वो इंडोनेशिया से हैं। आंद्रे 4 माह के थे जब उन्हें गोद लिया गया।
मैं 2013 में पहली बार इंडोनेशिया आया और इसके बाद मेरी अपनी पहचान की तरफ तवज्जो हुई। आंद्रे को गोद लेने के बारे में दस्तावेज़ात से पता चला कि उनके वालिदैन लामपुंग में रहते थे। मुझे गोद लेने वाले मेरे वालिदैन हमेशा कहते थे कि अगर तुम अपने मुल्क वापस जाना चाहो तो हम तुम्हारा साथ देंगे। 2017 में आंद्रे ने एक फलाही इदारे से अपने असली घर वालों की तलाश में मदद हासिल की। उस इदारे ने आंद्रे के हकीकी वालिदैन के करीब रहने वालों से मालूमात हासिल की। कुछ करीबी रिश्तेदार मिले और DNA टेस्ट किया गया, जिसके नताइज मुस्बत निकले और आंद्रे की वालदा कार्तिनी की निशानदेही हुई। मेरा अपने बेटे को छोड़ने का हरगिज़ इरादा नहीं था। जब आंद्रे पैदा हुआ तो उसके वालिद उसे अस्पताल रखना चाहते थे। मैं एक हफ्ते बाद अपने बच्चे को देखने वापस आई, मगर उन्होंने मुझे इजाज़त नहीं दी। मैंने घर आकर अपने शौहर से पूछा और फिर हमारी लड़ाई हुई। एक माँ अपने बच्चे से क्यों नहीं मिल सकती? मेरे शौहर के पास इसका जवाब नहीं था। आंद्रे अपनी बीवी के साथ पहली बार अपनी हकीकी माँ से मिलने आए। मैं थोड़ा घबराया हुआ हूँ। एक अरसे से इस लम्हे का इंतजार था। दिल तेज धड़कने की वजह से मुझे सारी रात नींद नहीं आई। सारा मोहल्ला इस लम्हे को देखने के लिए जमा हो गया। ये तुम्हारा बड़ा भाई है। और फिर छोटी बहन को गले से लगाया। आंद्रे के वालिद कई दहाइयों से गायब हैं और ये अब भी एक मामला है कि आंद्रे द नेदरलैंड्स कैसे पहुंचे। अगर आप चाहें तो मुझसे ट्विटर पर भी रब्ता कर सकते हैं। मेरा ट्विटर हैंडल है @आलिया नाज़की। इसके साथ ही सरबीन अख्ताम को पहुंचा। आलिया नाज़की को इजाज़त दीजिए।